السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں آمینہ زاہد۔ ڈی پی او ساہیوال نے تھانہ گلا منڈی پولیس کی کامیاب کارروائیوں میں برآمد ہونے والا لاکھوں روپے مالیت کا سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او ساہیوال نے گلشن علی ہاؤسنگ اسکیم میں ایک پروقار تقریب کے دوران تھانہ گلا منڈی پولیس کی کامیاب کارروائیوں میں برآمد ہونے والے لاکھوں روپے مالیت کا سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ تقریب کے دوران 26 مویشی، 70 واٹر پمپ اور 5 عدد موٹر سائیکل ان کے حقیقی مالکان کے سپرد کیے گئے۔ برآمد شدہ سامان کی حوالگی پر شہریوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، مسروقہ املاک کی برآمدگی ساہیوال پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا پولیس عوام کے اعتماد کی بحالی اور جرائم کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تقریب میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات، معززین علاقہ اور صحافی برادری نے شرکت کی، پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر مالکان نے اپنی قیمتی املاک واپس ملنے پر ساہیوال پولیس کا شکریہ ادا کیا اور ایس ایچ او تھانہ گلا منڈی کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل نے رمضان المبارک کے موقع پر حکومت پنجاب کو ہدایت پر قائم کردہ سہولت بازاروں کا دورہ کیا۔ یہ سہولت بازار مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق اور اسسٹنٹ کمشنر ماہم واحد کے ہمراہ رمضان المبارک کے موقع پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر قائم کردہ سہولت بازاروں کا دورہ کیا۔ یہ سہولت بازار مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ کمشنر ساہیوال نے سہولت بازار میں آٹا، چینی، گھی، دالیں، پھل، سبزیاں، گوشت، کھجور اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور مقررہ نرخوں پر فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف سٹالز کا معائنہ کرتے ہوئے اشیاء کے معیار اور مقدار کو چیک کیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ اشیاء خورد و نوش کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ دورے کے دوران انہوں نے سہولت بازار میں قائم نماز کی جگہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی، ہیلتھ کیمپ اور شکایت سیل کا بھی معائنہ کیا۔ متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام بنیادی سہولیات مکمل طور پر فعال رکھی جائیں۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو صاف ستھری، معیاری اور مناسب نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ قیمتوں کی مانیٹرنگ، اشیاء کی وافر دستیابی اور شہریوں کی شکایت کے فوری ازالے کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ نعمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان بھر کے مختلف شہروں کی طرح بہاول نگر میں بھی سینکڑوں مستحق گھرانوں میں مفت رمضان راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نعمت فاؤنڈیشن غیر سیاسی، غیر منافع بخش فلاحی ادارہ ہے۔ نعمت فاؤنڈیشن نعمت اسکل سینٹر، قرض حسنہ پروگرام، نعمت افطار دسترخوان جیسے بے شمار پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے۔ جامعہ علومیہ ساہیوال پر شعبہ حفظ القرآن کے سالانہ امتحانات کے موقع پر شاندار تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں نمائندہ اسپیشل ٹی وی رانا صدام حسین کے 13 سالہ طالب علم زین العابدین نے حفظ قرآن بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مدرسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے ہونہار حفاظ کرام قوم کا سرمایہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر طلباء کی کامیابی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بارسلونا کے نواحی علاقے بادلونا میں رمضان المبارک کی پہلی افطاری پر مسجد مولا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا افتتاح امریکہ کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری باسط نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ مولانا عبدالرشید نے دعا فرمائی۔ شرکاء کے لیے افطاری کا وسیع بندوبست کیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ساری شاہ صاحب کی کاوش ہے کہ آج ماشاءاللہ رمضان کا پہلا ڈے ہے اور گفٹ ہے ایک کمیونٹی کو، ماشاءاللہ ساری کمیونٹی کو بہت بہت مبارک۔ بادلونا میں نئی مسجد اللہ نے گفٹ دی ہے سب کو ماشاءاللہ۔ کہ آج ایک ایسی مسجد کا افتتاح ہوا ہے جس میں بلا رنگ، نسل، مذہب لوگ یہاں خدا کی عبادت کر سکیں گے۔ جیسے حضرت امام مہدی سرکار علیہ السلام آخری زمان میں تشریف لائیں گے تو اس وقت دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہوگا، صرف مسلمان ہوں گے اور محمد والے محمد کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ مسجد
तमाम मुसलमानों के लिए और हर मुसलमान यहाँ आकर नमाज अपनी इबादत पूरी कर सकते। तो ये मस्जिद परसुलना बदालुना में है। आज इफ्तिताह हुआ है मौलाना महदी ईसा अलैहिस्सलाम। उस मस्जिद का इंतहा उसकी ये है, शुरू उसकी ये है कि तमाम इंसानों मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई फ़िरका वाला नहीं है। आज बार्सिलोना में मस्जिद ईसा महदी अलैहिस्सलाम का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक इस मस्जिद में बरकत दे और सबको इबादत करने की तौफीक दे, और सारी कम्युनिटी से अपील है कि इधर से तावन करके इस मस्जिद को चलाने में हमारा साथ दे। हमारे भाई हैं, हर फ़िरका के लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे उस्ताद मुहतरम भी बैठे हुए हैं, सरपरस्त हैं जो इस पूरी तंजीम के। हम ये फ़िरका परस्ती ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मौला महदी अलैहिस्सलाम आज मैं खुशी से सिर्फ आंसू बहाए हैं कि हमें इस काबिल बनाया कि हम मौला के सिपाही बन सके। कोटरी साइट म्यूनसिपल कमेटी बोल्हारी में बुनियादी शहरी सहूलियात की कमी, फिल्टर प्लांट की तवील अरसे से बंदिश और लाइनों के जरिए पानी की फ्राहमी बहाल न होने के खिलाफ नौजवान तहरीक के रहनुमाओं की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़ियादत अब्दुल सत्तार हुर, शहबाज मेमर और दीगर ने की। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि इलाका मुकीम तवील अरसे से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि टूटे फूटे रोड, फिल्टर प्लांट की बंदिश और लाइनों के जरिए पानी की फ्राहमी न होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि पानी की किल्लत का फायदा उठाते हुए टैंकर माफिया खुलेआम सरगर्म होकर महंगे दामों पर पानी फरोख्त कर रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि टैंकर माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर आफ्ताब चौधरी शादी के हसीन बंधन में बंध गए। वलीमा की पुरवकार तकरीब इनके आबाई गांव में मुनक्किद हुई, जहां इलाके भर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान दुआ भी की गई। लाहौर डिवीजन हरबंसपुरा रेलवे क्वार्टरों पर प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस पर मजीद जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, लाहौर डिवीजन हरबंसपुरा में रेलवे क्वार्टरों पर प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर रखा है। हरबंसपुरा कदीमी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब रेलवे डिपार्टमेंट के क्वार्टरों पर प्राइवेट लोगों ने अपनी रहायशों के साथ कारोबार भी कर रखे हैं। स्पेशल टीवी की इन्वेस्टिगेटेड टीम ने सराग लगाया और मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की। लेंटर भराई करने वाले लोग अपनी मशीनरी भी वहां पर खड़ी करते हैं और रहायश भी वहां की है। स्पेशल टीवी की स्क्रीन पर वाज़ेह देखा जा सकता है कि लेंटर बनने वाली कितनी मशीनरी मौजूद है, और इसके अलावा भैंसें भी बांध रखी हैं। और अगर हरबंसपुरा फाटक की बात करें तो हरबंसपुरा फाटक को चारों तरफ से ठेलेबानों ने घेर रखा है, और मुबैना तौर पर यह इंकशाफ हुआ है कि रेलवे इंतजामिया के लोग वहां से मंथ लेते हैं और IOW के लोग क्यों खामोश हैं। या तो ये मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हैं, ये फ़र्ज़ करें ये रिश्वत नहीं लेते तो फिर यहाँ से तजावज़ात का खात्मा क्यों मुमकिन नहीं, यहाँ पर अक्रोचमेंट ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता, क्वार्टरों से प्राइवेट लोगों को क्यों नहीं भगाया जाता। बात सच है जो IOW के लोग को बहुत कड़वी लगेगी। अगर ये लोग ईमानदारी से ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो फिर ये वायलेशंस क्यों। इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म है। आला अफसरान की खामोशी कितने सवाल पैदा कर रही है। ये भी सोचने वाली बात है कि DEN1 अब्दुर्रहमान को मुतअद्दिद बार बताया गया, इनकी जानब से ये जवाब आया कि ऑपरेशन हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। अगर बात करें DDL वासिफ इकराम की तो वो फ़ोन उठाना मुनासिब ही नहीं समझते। अगर इन तमाम बातों को इकट्ठा किया जाए तो फिर कौन कौन जिम्मेदार है, अगली खबर में वजाहत के साथ बताया जाएगा कि कौन कौन बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल गवर्नमेंट स्कूल में सालाना तकरीब रुनमाई हुई, जिसमें तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स, असनाद और दीगर इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की अनथक मेहनत को सराहते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि आइंदा भी तालीमी मैदान में नुमाया मकाम बरकरार रखा जाएगा। डेरा गाजी खां पुलिस थाना कोट चट्टा में एक फरलांग फासले पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के बाहर से कार चोरी हो गई। कार में 200 से ज्यादा राशन कार्ड भी मौजूद थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। डेरा गाजी खां पुलिस सर्कल कोट चट्टा में डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। थाना कोट चट्टा की हदूद तालपुर रोड से मोटरसाइकिल डकैती की वारदात सामने आ गई।
शहरी तालपुर रोड मोची के पास रुका एक और मोटरसाइकिल सवार ने शहरी से जबरदस्ती मोटरसाइकिल छीनी और जामपुर की तरफ फरार हो गया। मकामी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से वीडियो चेक और मुल्जिमान का पीछा करने की बजाय वारदात मानने से इनकार कर दिया। शहरियों ने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर डीपीओ डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया। डेरा गाजी खान थाना सिटी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को बेहतरीन कारकर्दगी पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने सर्टिफिकेट क्लास 3 और नकद इनाम से नवाजा। इस हवाले से डीपीओ डेरा गाजी खान का कहना है कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर खालिदा जावेद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन पर रमज़ान सहूलत बाजार में सस्ते नरखों पर अशिया ख़ुरनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ारों में अशिया ख़ुरनोश की कीमत 5 रुपये फ़ी किलोग्राम कम है। सहूलत बाज़ारों में बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त 10 रुपये फ़ी किलोग्राम कम रेट पर फ़रोख्त किया जा रहा है। खरीदारों के बैठने, पार्किंग, शिकायत काउंटर और रेस्क्यू कैंप की सहूलत भी मौजूद है। किसी भी किस्म की गिराफरोशी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोहटा मेल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से विंटर पैकेज के तहत मुस्तहिक़ अफराद के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। दफ्तर जमात इस्लामी में मुनक़दा इस तकरीब ने मज़ूर अफराद, बेवाओं और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को शदीद सर्दी से बचाव के लिए गर्म बिस्तर फराहम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी तौक़ीर अवा ने कहा, माशी दबाव के इस दौर में सफ़ेद पोश और कम आमदन वाले तबक़ात से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और खिदमत फाउंडेशन इनकी मदद को अपना दीनी और समाजी फरीज़ा समझती है। मेरा नाम शफाकत महमूद है। तो मैं अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने रमज़ान पैकेज पहले भी दिया था तो हमारे साथ तावन किया था, इन्होंने अभी भी पैकेज किया है तो हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कसूर में रमज़ानुल मुबारक का तारीखी इस्तकबाल करते हुए जगमगाती सजावट की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। माह रमजान का आगाज शहर के चौकों चौराहों को रंग बिरंगी लाइट से रोशन कर दिया गया। मुसलमानों के लिए तकद्दुस भरे महीने माह सियाम का इस्तकबाल इस कदर खूबसूरती और जज्बे से करना इस पाक अजमतों वाले महीने से मोहब्बतों की इकासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल को तारीखी और यादगार बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर ने अमली इक़दामात करते हुए शहर कसूर की मेन इंटरेस्ट के पॉइंट्स जगमगाती लाइट से रोशन कर दिए। हमने इस माह मुबारक के आगाज़ से पहले जो है अपने चौक चौराहों को जो है गलियों को जो है सजाना शुरू कर दिया है और साथ साथ जो है हमारी जो मसाजिद हैं बड़ी उसके अंदर भी इल्यूमिनेशन और सफाई सुथराई का जो प्रोसेस है उसका भी आगाज़ कर दिया है ताकि माह रमज़ानुल मुबारक को जो है खुशू और खुजू के साथ जो है सेलिब्रेट किया जा सके। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, ए रहमते अजीम के मेहमान इस्लाम। रमजानुल मुबारक का शानदार इस्तकबाल करते हुए पूरे महीने को नहायत खशू और खजू से गुजारा जाएगा ताकि बारगाह खुदा में हम अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सकें। नईम इकबाल बुलर, स्पेशल टीवी कसूर। रानीपुर दरगाह हजरत हाजिना शाल मरूफ बोदला शहनशाह बुखारी की सालाना उर्स की शानदार कवरेज पर अवामी प्रेस क्लब के खुसूसी एजाज से मुतालिक मज़ीद जानते हैं अब्दुल कयूम की इस रिपोर्ट में। रानीपुर में दरगाह हज़रत हाजिना शाह अल मारूफ बोदला शहनशाह बुखारी के सालाना उर्स मुबारक के शानदार और भरपूर मीडिया कवरेज पर अवामी प्रेस क्लब रानीपुर को खुसूसी एजाज़, एवार्ड और शील्ड से नवाजा गया। एवार्ड की पुरवकार तकरीब दरगाह के अदाए में मुनक़द हुई, जहां गादी नशीन किबला मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा अल मारूफ अली हैदर बादशाह ने पुरवकार अंदाज में प्रेस क्लब के अहदेदार और इराकीन को शील्ड पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए गादी नशीन मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा ने अवामी प्रेस क्लब रानीपुर के सहाफ़ियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि 3 रोज़ उर्स मुबारक की हर सरगर्मी को ज़िम्मेदाराना, पेशवाना और गैर जानबदाराना अंदाज में अवाम तक पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि सहाफ़त दरअसल समाजी खिदमत और ज़िम्मेदारी का नाम है और अवामी प्रेस क्लब की टीम ने अपनी मेहनत, दुनियात और पेशा रवाना सलाहियतों से इसका अमली सबूत दिया है। एवार्ड हासिल करने वालों में सदर साजिद अली करबलाई अंसारी, सीनियर नायब सदर मियाँ एजाज अली अब्बासी, नायब सदर नवीद अली सुमरो, जनरल सेक्रेटरी ज़ेगम रज़ा मुगल, डिप्टी सेक्रेटरी ज़फ़र अली खासकेली, जॉइंट सेक्रेटरी इमाम बैग शाहानी, फना सेक्रेटरी आमिर हुसैन सोलंगी, ऑफिस सेक्रेटरी जायद हुसैन हिंगोरो, जबकि मेंबरान अब्दुल कयूम अंसारी, नदीम अली सोलंगी, मंसूर अली मला और वसीम मंगनेजो और आगा तस्लीम रज़ा दायो शामिल थे।
उस मौके पर प्रेस क्लब के अहदेदारों ने इसके एजाज़ को अपने लिए बायस फ़िक्र करार देते हुए कहा कि वो आइंदा भी समाजी खिदमत और अवामी सरगर्मियों की कवरेज और सहाफ़ी उसूलों, दुनियादारी और गैर जानबदारी के साथ जारी रखेंगे। तकरीर के एहतमाम पर गादी नशीन मियाँ फ़िदा हुसैन पीरज़ादा ने कहा, उन्हें फ़ख्र है कि रानीपुर के सहाफ़ी सच्चाई, खिदमत और इखलास को अपना शआर बनाए हुए है। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल कय्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़ रानीपुर। डैकी के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी कई माह से खड़ा है, जिससे शाम के वक्त बदबू फैल जाती है। मकीनों का घरों में बैठना मुश्किल हो जाता है। शहरियों का कहना है मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश है। वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज के करीब सूरत हाल इंतहाई खराब है, जहाँ ताफुन के बाद बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ रही हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी निकासी आब का निज़ाम बहाल करके इन्हें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। एसपी सिविल लाइंस की जेरे निगरानी शॉप वेपन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजंग पुलिस ने सरेआम असला की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और गोलियां बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सिविल लाइंस का कहना है कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक असला की नुमाइश पर पाबंदी आयद है। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माह सियाम के आगाज के साथ पंजाब पुलिस लाहौर समेत सूबा भर में मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ सरगर्म अमल है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल के दौरान 555 गैंग्स के 1299 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलज़मान के कब्जे से 29 करोड़ 47 लाख से जायद मालियत का मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलज़मान के कब्जे से 20 करोड़ 40 लाख नकदी, 25 गाड़ियाँ, 364 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। 77 तोले सोना, 181 मवेशी, 623 मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए। मुलज़मान के कब्जे से 117 क्लाशनकोफ, 211 राइफल्स, 3494 पिस्टल भी बरामद की गई। 275 बंदूकें, 76 रिवॉल्वर, 13,950 गोलियां भी बरामद की गई। आईजी पंजाब ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी रखने की हिदायत की। इंचार्ज चौकी एल ब्लॉक नवाब टाउन पुलिस क्रैकडाउन में 7 कुमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को ताश पर सट्टेबाजी करते हुए मौका पर गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 1,02,000 से जायद नकद रकम, मोबाइल, ताश के पत्ते और रिकॉर्ड डायरी बरामद की गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सदर का कहना है कि कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वाल्टन एसपी डॉल्फिन के जेरे सदारत रमजानुल मुबारक की सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड को रमजानुल मुबारक की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। शहर की तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की स्क्रूटनी कर ली गई। डॉल्फिन स्क्वाड का फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट भी मुख्तलिफ मार्केटों में तैनात कर दिया गया। तर्जुमानी डॉल्फिन के मुताबिक माह रमजान स्पेशल पेट्रोलिंग टास्क के लिए 6 इंस्पेक्टर्स भी तैनात कर दिए गए। एसपी डॉल्फिन का कहना है कि रमजान में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सियालकोट में भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से रमजान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जहां एक ही छत तले शहरियों के तमाम अशियाए ज़रूरिया रियायती नरखों पर फ्राहम की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुस्तफ़ा अली। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं रमज़ान बाज़ार, जो जिसको सहूलत बाज़ार भी कहा जाता है सियालकोट में, जहाँ पर एक ही छत के नीचे लोगों को तमाम रोज़मर्रा अशिया जो हैं, खुर्दोनोश जो हैं, वो मुहैया की जा रही हैं। हमारे साथ सहूलत बाज़ार के सुपरवाइज़र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सहूलत बाज़ार रमज़ान मुबारक जो लगा हुआ है, यहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की जो तमाम अशिया हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, और सीएम साहबा जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पर यहाँ पर जो है हमने रमज़ान मुबारक के हवाले से बाज़ार लगवाया हुआ है। अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, बैठने के लिए जो है वो जगह भी है, नमाज के लिए भी जगह बनाई हुई है, और उसके साथ व्हील चेयर भी रखी हुई हैं जो माजूर अफराद के लिए हैं। और उसके साथ साथ जो सरकारी नरखनामा है उससे भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक का डिस्काउंट है। जिस तरह अब आटा है वो उसका नरखनामा जो है वो सरकारी रेट है वो 905 है, लेकिन यहाँ पर सीएम साहबा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर खसूसी डिस्काउंट दिया गया है, और उसमें हम 850 रुपये का दे रहे हैं। ठीक है। और जो चीनी है वो बाहर जो है 180 रुपये, 200 रुपये भी बिक रही है, लेकिन सहूलत बाज़ार में 140 रुपये डिस्काउंट के साथ हम दे रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب باقی سبزی ہے، فروٹ ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، بیسن ہے، اس میں بھی جو ہے نا 10 روپے 20 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، کچھ چیزوں میں 30 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ، اور جو چکن ہے، چکن میں جو ہے 15 روپے کا ڈیلی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، اور جو انڈا ہے اس میں بھی 10 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، ہر چیز میں کم سے کم جو ڈسکاؤنٹ ہے نا وہ 10 روپے دیا جا رہا ہے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ جی جو گورنمنٹ کا نرخ نامہ ہے اس سے بھی جو ہے سی ایم کی ہدایت کے اوپر جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے جو سہولت بازار ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور جس سے لوگ جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہیں ان کو آسان سے آسان اور بہتر سے بہتر کر سکے۔ اسی کے ساتھ مصطفیٰ علی، بیورو چیف، اسپیشل ٹی وی، سیالکوٹ۔ مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس احمد پور سیال کے 62ویں سالانہ اجتماع کے موقع پر 11ویں عالمی محفل حسن قرا میں مصری قرا نے حاضرین محفل کے قلوب و اذہان کو ایمان و ایقان کی روشنی سے منور کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طاہر۔ احمد پور سیال کی معروف اور قدیمی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس احمد پور سیال کے 62ویں سالانہ اجتماع کے موقع پر محتمم صاحبزادہ مولانا قاری سید محمود علی شاہ کی سرپرستی میں 11ویں انٹرنیشنل محفل حسن قرت منعقد ہوئی، جس میں علاقہ بھر سے خاص و عام اور معتبر شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مصری قرآ القاری الشیخ یاسر عبد المجید، القاری الشیخ ناصر احمد علی، القاری الشیخ ابراہیم صالحین اور القاری الشیخ عبد السمی نے لہن داؤدی میں کلام اللہ کی تلاوت کر کے حاضرین محفل کے قلوب و اذہان کو ایمان و ایقان کی روشنی سے منور کیا۔ اس موقع پر سلسلہ شمسیہ بدیعیہ کے روحانی پیشوا شیخ حضرت علامہ محمد فخر الدہر المعروف پیر سید محمد مفخر الزمان شاہ اور دیگر علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ہم نے قرآنی تعلیم کی ترویج کے لیے محفل حسن قرات کو بھی اس کا مستقل حصہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ بندے سے حساب کتاب نہ لینا، التائب حبیب اللہ، یہ توبہ کرنے والا میرا دوست بن جاتا ہے۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ تحصیل فیروز والا تھانہ کوٹ عبد المالک کے نئے ایس ایچ او کرائم فائٹر جمشید اقبال تعینات ہو گئے۔ اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایماندار کرائم فائٹر ایس ایچ او تھانہ کوٹ عبد المالک کی حدود میں بہترین کارکردگی کے حامل ہوں گے۔ علاقہ مکین نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔